رات کے 12 بج چکے تھے اور فضا میں ایک عجیب سکوت طاری تھا۔ آسمان پر گنے حویلی کا وسیع و عریض بیرونی ہال جو عام طور پر روشنیوں سے چمکتا تھا، اس وقت مدھم پیلی روشنی کی وجہ سے ایک پراسرار منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اتنی خاموشی کہ دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے سکتی تھی۔ اچانک حویلی کا دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ تاریک ہال میں تیز ہائی ہیلز کی بے ربط ٹک ٹک گونجی۔ یہ پریشی تھی جو شہر کے ایک انتہائی پرتعیش اور بے باک پارٹی سے رات کے گھر لوٹی تھی۔ وہ نشے میں اس حد تک دھت تھی کہ اس کے اپنے قدموں پر توازن رکھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا اور اس کی مہنگی سفید شرٹ کے اوپری کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کے کندھے اور گلا نمایاں ہو رہے تھے۔ ہال کے کونے میں کھڑا شخص اس تماشے کو انتہائی سرد مہری اور گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ملک شاہ زر تھا۔ گارڈز کے یونیفارم میں ملبوس ہونے کے باوجود اس کی قامت، اس کی چوڑی چھاتی اور اس کا روکدار چہرہ کسی بھی طرح ایک عام ملازم کا نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، غصہ اور عجیب سی تسکین کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ پریشے لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ شاہزر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر خود کو روک لیا۔ پریشے نے اپنے سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھا۔ اس کی نشیلی اور دھندلی آنکھوں میں شاہزر کا چہرہ ابھرا۔ وہ زبردستی آگے بڑھی اور شاہزر کے مضبوط سینے سے جا چپکی۔ اس کے جسم سے شراب اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ اوے گاڈ، ادھر آؤ ذرا، پریشے نے نشے میں بوجھل زبان سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ شاہزر کے چوڑے کندھوں پر رینگنے لگے۔ بی بی جی، آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، مہربانی کر کے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائیں اور اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ شاہزر کی آواز میں سرد مہری تھی۔ کس کو چاہیے ہوش؟ مجھے نہیں چاہیے کوئی ہوش، پریشے نے لاپرواہی سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس کا ہاتھ اپنی شرٹ کے پیچھے گیا جہاں وہ اپنی الجھن سلجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ تل ملا اٹھی۔ سنو گارڈ، میری برا کی ہک تو ذرا بند کر دو، جلدی کرو، یہ میرا حکم ہے، اس نے انتہائی بے باکی اور ضد سے کہا، اور شاہزر کا گریبان اپنے دونوں نازک ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آواز میں امارت کا وہ تکبر اب بھی موجود تھا جو اسے اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ شاہزر کا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرائے جو فوراً سے شدید غصے میں بدل گئے۔ اس کے دل نے ایک زوردار دستک دی۔ ملک فرزند کی لاڈلی بیٹی، جس کے غرور کی کہانیاں پورے شہر میں مشہور تھی، اس وقت ایک معمولی گارڈ کے سامنے اس حالت میں کھڑی تھی اور اس سے زیادہ یہ نزیبہ تقاضا کر رہی تھی۔ پریشی بی بی، آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں۔ شاہزر نے دانت پیستے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن پریشے نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ مجھے پتا ہے، تم میرے پاپا کے نوکر ہو، ایک گارڈ، اور نوکر کا کام ہوتا ہے مالک کے حکم کی تعمیل کرنا۔ بولو، ہوتا ہے نا؟ اسے شاہزر کے چہرے کے انتہائی قریب آتے اپنی گرم سانسوں کی عادت اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے کہا، چلو اب جلدی کرو، مجھ سے یہ ہک بند نہیں ہو رہی، مجھے چبھ رہی ہے، بند کرو اسے۔ میں نے کہا اپنی حد میں رہے بی بی جی، شاہزر نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس کی خاندانی غیرت نے ایک لمحے کو سر اٹھایا تھا۔ آپ ایک پاکیزہ خاندان کی لڑکی ہیں، کم از کم اپنے باپ کی عزت کا تو خیال رکھیں۔ پاپا کی عزت؟ پریشے نے ایک تلخ اور دیوانہ وار کہکا لگایا۔ وہ پاپا جو مجھے مہینے میں ایک بار بھی پیار سے نہیں دیکھتے، جن کے لیے ان کا بزنس اور ممی کی کٹی پارٹیز کی سب کچھ، ان کی عزت کی پرواہ میں کیوں کروں؟ تم کیوں اتنے پاٹ سا بن رہے ہو؟ چلو بند کرو اسے۔ شاہزر نے اس کی بے باکی اور اس کی آنکھوں میں چھپے اکیلے پن کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ اس لڑکی کو اسی وقت دھکا دے کر زمین پر گرا دے، لیکن اس کے دماغ میں ماضی کی وہ تلک یادیں گونگ گئی۔ اس نے سوچا، یہی تو وہ موقع ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا، ملک فرزند کی عزت کو خاک میں ملانے کا۔ اس سے بہترین موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لمحے اچانک باہر آسمان پر بجلی کا ایک خوفناک دھماکہ ہوا جس سے پورا ہال ایک سیکنڈ کے لیے سفید روشنی میں نہا گیا۔ پریشے جو پہلے ہی حواس کھو چکی تھی، خوف سے بری طرح سے چونک اٹھی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور پھر اچانک باہر تیز کڑکتی ہوئی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا شور اتنا تیز تھا کہ جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا۔ حویلی کی کھلی کھڑکیوں سے سرد ہوا کے جھونکے اور بارش کی بوندیں ہال کے اندر داخل ہونے لگی، جس سے ماحول میں یکدم ٹھنڈک پڑ گئی۔
परीशा ने सर्दी और खौफ की शिद्दत से कांपते अपने दोनों बाजू शाहजर के गले में डाल दिए। वो पूरी की पूरी उसकी मजबूत वजूद में समा गई। प्लीज, प्लीज मुझे उठा लो ना शाहजर, मैं भीग जाऊंगी, मुझे ठंड लग रही है, प्लीज। उसने इंतहाई मासूमियत और बचपने से गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसके लहजे में वो तकब्बुर नहीं था, बल्कि एक बेबस बच्ची की इल्तिजा थी जो तूफान से डर गई हो। शाहजर का वजूद अकड़ गया। उसके गले में मौजूद लड़की की नरम बाहें और उसकी सांसों की तपिश उसके नफ्स को चैलेंज कर रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से उड़कर उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। परीशा ने अपना सर उसके जोड़े कंधे पर टिका दिया और आंखें मूंद ली। शाहजर ने आहिस्ता से अपने हाथ उठाए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। उसकी आंखों में इंतकाम की चमक तेज हो गई। परीशे फरजंद, शाहजर ने इंतहाई धीमी सरगोशी नुमा आवाज में उसका नाम लिया, जो कि बारिश के शोर में दब कर रह गया। आज तुम्हारे बाप के गरूर की दीवारें गिरने का वक्त हो गया है। तुमने खुद मुझे ये मौका दिया है और मैं मलिक फरजंद को वो चोट दूंगा जिसका वो दर्द अपनी आखिरी सांस तक महसूस करेगा। उसने परीशे को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। परीशा ने सुकून की एक सांस ली और वसीत उसके साथ चिमट गई। शाहजर ने अपने कोट की जेब से धीरे से अपना मोबाइल फोन निकाला और अब उसकी पूरी तवज्जो उसकी तरफ थी। 20 साल पहले हवेली के दरो दीवार पर जमानों की शान शौकत और दबदबे का राज था। मलिक शाहजर के वालिद तैमूर और परीशे के वालिद मलिक फरजंद सगे कजन थे। उन दोनों ने इस इलाके के बाअसर तरीन जमींदार खानदान के चश्मो चराग थे। वो उनके बुजुर्गों ने खानदानी मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए मलिक फरजंद का रिश्ता मलिक तैमूर की नहायत ही मासूम शर्मीली और सादालू बहन जरीना से तय कर दिया। जरीना, जिसने बचपन से जवानी तक का सफर इस हवेली की दालान में चादर और चारदीवारी की तकद्दुस में गुजारा था, वो बचपन से सिर्फ मलिक फरजंद के नाम की तस्वीर पढ़ती आई थी। लेकिन मलिक फरजंद जो शहर में अपने बिजनेस पार्टीज के साथ कारोबार की चकाचौंध में गुम हो चुका था, उसके लिए मिट्टी, ये रवायात और ये सादगी बेमायनी हो चुकी थी। फरजंद, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? पूरे खानदान की इज्जत, हमारी बरादरी के बुजुर्गों का मान उस रिश्ते से जुड़ा है। शादी के कार्ड छप चुके हैं, हवेली के बाहर शहनाइयां बजने वाली, और तुम कहते कि तुम ये शादी नहीं करोगे। मलिक तैमूर की रूपदार आवाज हवेली के दालान में गूंजी। उनके चेहरे की रगें गुस्से में तनी हुई थी और मुट्ठियां भींची हुई थी। मलिक फरजंद ने, जो इंतहाई महंगे और जदीद शहरी लिबास में मलबूस था, अपने बालों में हाथ फेरा और बेपरवाही से कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर हवेली की रवायात की रति बराबर भी एहतराम नहीं था। तैमूर, खुदा के लिए अपनी ये जगीदारा सोच और पुरानी बातों को के राग अलापना बंद कर दो। मैं अब कोई ना समझ बच्चा नहीं हूं जिसे तुम लोग अपनी मर्जी से बांध सको। मैं शहर में रहता हूँ, वहां बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। मैं इस पसमादा गांव के किसी जाहिल देहाती लड़की को अपनी शरीके हयात बनाकर अपनी साख बर्बाद नहीं कर सकता। मलिक तैमूर की आंखों में खून उतर आया। वो चंद कदम आगे बढ़ा और फरजंद का गिरबान पकड़ने ही वाला था कि बुजुर्गों ने उसे रोक लिया। फरजंद, जरीना मेरी सगी बहन है, वो जाहिल नहीं है। इस हवेली की लाज और हया का मुजस्समा है। उसने कभी तुम्हारे नाम के सिवा किसी गैर मर्द का सोचा तक नहीं, और तुम अपनी हवस और शहरी चमक धमक के लिए उस पर तोहमत लगा रहे हो। बहन होगी तुम्हारी, मेरे लिए वो एक कठपुतली है जिसे ना तो कोई मॉडर्न अज़म का कोई पता है और ना ही उसकी कोई मर्जी है। फरजंद ने नफरत से अपना हाथ झटका। मेरी दुनिया बदल चुकी है तैमूर, वहां जिंदगी का एक अलग माया है। शर्मिला को देखा है तुमने? वो मेरे बिजनेस पार्टनर की बहन है। मॉडर्न, तलीफ याफ्ता, खुद एतमाद और जदीद दौर के तकाजों को समझने वाली खातून। वो मेरे शाने से शाना मिलाकर चल सकती है। मैंने उसे प्रपोज किया और वो मेरी बीवी बनेगी। तो तुमने फैसला कर लिया है? मलिक तैमूर की आवाज अब धीमी मगर इंतहाई खौफनाक हो चुकी थी। तुम इस खानदान की इज्जत को अपनी जूती तले रोंद कर उस शहरी औरत के पास जाना चाहते हो? हाँ, मैं जरीना से शादी कभी नहीं करूंगा। तुम लोगों को जो करना है कर लो। मैं शर्मिला के साथ अपनी अलग दुनिया बसा रहा हूँ। मुझे इस हवेली, इस गांव और यहाँ के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। मलिक फरजंद ने आखिरी बार हवेली के बुजुर्गों और तैमूर को देखा और पैर पटकता बाहर निकल गया। उसके पीछे हवेली के बड़े दरवाजे के बंद होने की बारी आवाज आई, जो दरअसल एक खानदान के बिखेरे का ऐलान थी।
ढलान के एक ستون के पीछे खड़ी जरीना ने जब ये जिल्लत भरे जहरीले जुमले सुने तो उसका पूरा वजूद कांप उठा। उसके पांव तले से जैसे जमीन निकल गई। वो मासूम लड़की जिसने अपनी दुनिया सिर्फ फर्जंद की हद तक महदूद रखी थी, उसकी नजरों के सामने उसके ख्वाबों का शीश महल चकनाचूर हो गया। जरीना, मेरी बहन। मलिक तैमूर दालान की तरफ भागा जहां जरीना नडाल होकर फर्श पर गिर चुकी थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भाईजान, वो मुझे जाहिल कह रहे थे। उन्हें मेरी सादगी से नफरत थी। क्या मेरा कसूर ये था कि मैंने इस हवेली की इज्जत की लाज रखी? जरीना की हिचकियां बंद हो गई थी। नहीं मेरी बहन, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर उस कमसर्फ इंसान का है जो शहर की रंगीनियों में उम्दा हो गया। खुदा की कसम, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इस पूरे खानदान के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हैं। मलिक तैमूर ने रोते हुए अपनी बहन को गले से लगा लिया, लेकिन जरीना के दिल पर जो गहरी चोट लगी थी उसका कोई मरहम नहीं था। उस दिन के बाद जरीना ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो बिल्कुल गुमसुम हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और वो दिन रात बस एक ही कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। पूरे खानदान ने मुतलका तौर पर मलिक फरजंद का मुकम्मल बाइकाट कर दिया, लेकिन फरजंद को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शहर जाकर शर्मिला से धूमधाम से शादी कर दी और एक आसूदा जिंदगी गुजारने लगा। इन दिनों हवेली के सहन में एक 6 साल का बच्चा घूमता रहता था, जिसकी मासूम आंखें हवेली के उस बदले हुए और आदास माहौल को देखती रहती थी। वो मलिक तैमूर का इकलौता बेटा मलिक शाहजर था। नन्हा सा शाहजर अपनी पुप्पो जरीना के बहुत करीब था। वो उनकी गोद में खेलता था, उनसे कहानियां सुनता था, लेकिन उसके ही दिन गुजर गए थे। उसके पुप्पो ने उसे गले से नहीं लगाया था। एक तपती हुई दोपहर था। नन्हा बच्चा शाहजर अपने नन्हे हाथों से फूल पकड़े चोरी छुपे अपनी पुप्पो के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरा था और जरीना फर्श पर सर घुटनों में दिए बैठी थी। पुप्पो, वो मेरी प्यारी पुप्पो, देखे, मैं आपके लिए बाग से एक प्यारी प्यारे से फूल लाया हूँ। आप इनकी खुशबू सूंघे ना, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। शाहजर ने मासूमियत से उनका दामन खींचा। जरीना ने आहिस्ता से सर उठाया। उसका चेहरा बेजान हो चुका था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे। उसने शाहजर के नन्हे चेहरे को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहकर शाहजर के हाथ पर गिरे। शाहजर, मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ बाहर जाकर खेलो। तुम्हारी पुप्पो अब बीमार है, वो तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। जरीना की आवाज इतनी मध्यम थी जैसे कोई गहरी खाई से बोल रहा हो। पुप्पो, आप रोज क्यों रोती हैं? पापा भी बहुत गुस्से में होते हैं और दादी जान भी रोती हैं। क्या किसी ने आपको मारा है? मुझे बताएं, मैं पापा की बंदूक लेकर उसे मार दूंगा। शाहजर की नन्ही आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। जरीना ने शाहजर को अपनी कमजोर बाहों में समेट लिया। शाहजर, इस दुनिया में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बंदूक से नहीं बल्कि लफ्जों से दिए जाते हैं। तुम्हारे फर्जंद चाचू ने, उन्होंने मेरी रूह को मार दिया। उन्होंने मुझसे मेरी हंसी, मेरी खुशी और मेरी जीने की वजह छीन ली। बस ये आंसू मेरे नसीब में लिख दिए। शाहजर ने अपनी छोटी छोटी आंखों अंगूठों से सरीना के रुखसारों पर बहते आंसू पूछे। फर्जंद चाचू बहुत गंदे हैं पुप्पो। पापा कह रहे थे कि वो अब कभी इस घर में नहीं आएंगे। पापा ने उनकी तस्वीरें भी जला दी हैं। वो बहुत दूर चले गए हैं शाहजर। वो अपनी मॉडर्न बीवी के साथ बहुत खुश होंगे और यहाँ मैं रोज घुट घुट कर मर रही हूँ। जरीना ने हिचकी लेते हुए कहा, मर्द कितने बेरहम होते हैं ना शाहजर। वो अपनी खुशी के लिए किसी की पूरी जिंदगी भी मिट्टी में मिला देते हैं। उन्हें पछतावा भी नहीं होता। नन्हे शाहजर ने अपनी पुप्पो की छाती पर सर टिका दिया। उस 6 साल की उम्र में जहाँ बच्चों की को गुड़ियों और खिलौनों की फिक्र होती थी, शाहजर के कच्चे जहन में अपनी पुप्पो के बहते आंसू और उनकी सिसकियां नक्श हो रही थी। उसके दिल में अपने चचा मलिक फरजंद और उसके पूरे वजूद के लिए एक गहरी, कभी ना खत्म होने वाली नफरत ने जन्म ले लिया था। पुप्पो, आप रोए मत। मैं पापा की तरह बड़ा आदमी बनूंगा ना, तो मैं उन फरजंद चाची को सजा दूंगा। मैं उनसे आपके हर एक आंसू का हिसाब लूंगा। वो भी ऐसे ही रोएंगे जैसे आप रो रही हैं। मैं उनसे उनकी हर खुशी छीन लूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। शाहजर की मासूम आंखों में इस वक्त इंतकाम का शोला था। जरीना ने रोते उसके माथे पर बोसा दिया। ये जाने बगैर कि उसका मासूम भतीजा अपने नन्हे दिल में इंतकाम का कितना बड़ा नासूर पाल रहा है, जो एक दिन सबको अपनी लपेट में लेने वाला था। वक्त की बेरहम लहरें अपनी रफ्तार से बहती रही और 20 साल का तवील अरसा पलक झपकते गुजर गया। वो 6 साल का मासूम बच्चा
मलिक शाजर अब 26 साल का एक वजीहा, कड़ियल और मजबूत जिस्म का मालिक बन चुका था। उसके चेहरे के तीखे नकूश, उसकी गहरी अकाबी आंखें और उसका बावकार लहजा उसकी खानदानी अमारत का पता देते थे। लेकिन उस खूबसूरत वजूद के अंदर पिछले 20 साल से सिर्फ एक ही आग दहक रही थी, इंतकाम की आग। दूसरी तरफ जरीना पप्पो, जो हवेली के एक अंधेरे कोशे में जिंदा लाश की तरह जिंदगी के दिन गुजार रही थी, भले आखिर उस गहरे सदमे और तन्हाई के बोझ को मजीद ना सह सकी और एक उदास शाम सिसकते सिसकते दम तोड़ गई। उनकी मौत हवेली पर एक क्यामत बनकर उठी और शाहजर के लिए ये कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि उसके वजूद में लगी आग पर पेट्रोल का काम कर गई थी। जरीना पप्पो की तदफीन के बाद कब्रिस्तान की खामोश फिजा में शाहजर उनकी कब्र की मिट्टी पर हाथ रखे खड़ा था कि उसके वालिद मलिक तैमूर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाहजर, मेरी बहन चली गई, फर्जंद का दिया हुआ तो अपने साथ कब्र में ले गई। वो जालिम शहर में अपनी बीवी के साथ ऐश कर रहा है और मेरी फूल सी बहन मिट्टी तले जा सोई। मलिक तैमूर की आवाज में आंसू और बेबसी थी। शाहजर ने अपनी मुठ्ठियां इस हद तक भींच ली कि उसके हाथ के जोड़ सफेद पड़ गए। उसने सुरख आंखों से अपने वालिद को देखा। पापा, आप रोए मत। पोपो की रूह को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं मलिक फरजंद को इसी मिट्टी में घुटनों के बल लाकर खड़ा ना कर दूं। मैं शहर जा रहा हूँ पापा। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। शाहजर, वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम वहां कैसे जाओगे ये सब? मलिक तैमूर ने फिक्रमंदी से पूछा। दुश्मन जितना बड़ा हो ना पापा, उसका गरूर तोड़ने का मजा उतना ही ज्यादा होता है। मैं उसकी कमजोरी बनकर उसकी रगों में उतरूंगा, आप बस देखते जाएं। शाहजर के लहजे में ऐसी वहशत थी कि तैमूर भी कांप उठा। शहर पहुंचकर शाहजर ने अपनी असल पहचान छुपाई। उसने अपने खानदानी नाम को अपने नाम से अलग कर दिया और खुद को महज एक गरीब नौकरी मुतलाशी शाहजर के तौर पर पेश किया। उसने कई दिन मलिक फरजंद के तौर तरीके, उसके कारोबार और उसके घराने की निगरानी की। निगरानी के दौरान उसे पता चला कि मलिक फरजंद ने सारी बुरी दुनिया में बहुत नाम कमाया था, लेकिन वो अपने घर को संभालने में नाकाम रहा था। उसकी इकलौती बेटी परिशे हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। शर्मिला के बेजा लाड प्यार और फरजंद की कारोबारी मसरूफियात ने परिशे को एक जिद्दी, मगरूर और सरकिश लड़की बना दिया था, जिसका रोज का मामूल देर रात तक क्लबों और पार्टियों में नशे में धुत रहना था। शाहजर ने अपने दिल में सोचा, मलिक फरजंद, तुमने मेरी फूफो की मासूमियत का तमाशा बनाया था। अब मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत, तुम्हारी इस लाडली बेटी को तुम्हारी बर्बादी का जरिया बनाऊंगा। जब उसे मालूम हुआ कि मलिक फरजंद को अपनी बेटी के नखरे और नाजेबा हरकत संभालने के लिए एक ऐसे पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत है जो दिन रात उसके साथ रह सके, तो शाहजर ने मौका गनीमत जाना। वो अपना हुलिया बदलकर मामूली शलवार कमीज और चादर ओढ़कर एक गरीब देहाती के रूप में मलिक फरजंद के सामने इंटरव्यू के लिए पेश हुआ। मलिक फरजंद कुर्सी पर बैठा सुघाड़ सुलगा रहा था जब शाहजर को उसके सामने पेश किया गया। फरजंद ने सर से पांव तक उसे घूरा। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान, और कहाँ से आए हो? फरजंद ने मगरूर लहजे में पूछा। जी साहब, मेरा नाम शाहजर है, मैं गांव से आया हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। शाहजर ने अपनी आवाज को जितना मुमकिन हो सका आजिजाना और सीधा साधा बनाने की कोशिश की। तुम्हारा कद काट और जिस्म तो किसी अच्छे खानदानी पहलवान जैसा लगता है, फिर गार्ड की नौकरी क्यों करना चाहते हो? फरजंद ने शक भरे अंदाज में अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए पूछा। साहिब, गरीबी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। गांव में बूढ़े माँ बाप हैं, उनका पेट पालने के लिए मुझे नौकरी चाहिए। अब जो काम कहेंगे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। शाहजर ने सर झुकाकर झूठ बोला, हालांकि उसका दिल चाह रहा था कि उसी वक्त उस शख्स का गला दबा दे। देखो शाहजर, काम तो गार्ड का ही है, लेकिन ड्यूटी मेरी बेटी परिशे के साथ है। वो हमारी इकलौती बेटी है, थोड़ी जिद्दी है और रातों को बाहर जाना उसका शौक है। तुम्हें हर वक्त उसके साथ साय की तरह रहना होगा। वो गुस्से की तेज है, नखरे भी दिखाने लगेगी, शायद बदतमीजी भी करे। क्या तुम झेल पाओगे? फरजंद ने सुघाड़ का धुआं उड़ाते हुए कहा। साहिब, नौकर का काम तो मालिक की हर बात सुनना होता है ना। मैं बेबी जी का पूरा ख्याल रखूंगा और उनकी हिफाजत मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। शाहजर ने अपने अंदर उठते तूफान को दबाते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह अच्छी होगी, लेकिन याद रखना, अगर परिशा ने तुम्हारी कोई शिकायत की तो मैं तुम्हें उसी वक्त निकाल दूंगा। कल सुबह से तुम्हारी ड्यूटी शुरू है। फरजंद ने फैसला सुनाया। बहुत शुक्रिया साहिब। शाहजर ने झुककर सलाम किया और कमरे से निकल गया। जैसे वो ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकला,
اس کے چہرے کی عدسی غائب ہو گئی اور ایک شیطانی مسکراہٹ نے اس کی جگہ لے لی۔ ملک فرزند، تم نے خود اپنی تباہی کو نوکری پر رکھ دیا ہے۔ اگلے دن شاہزر کی آزمائش شروع ہو گئی۔ فریشے واقعی حد سے زیادہ بدتمیز اور مغرور لڑکی تھی۔ پہلے دن جب وہ پارٹی کے لیے باہر نکلنے لگی تو شاہزر گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا تھا۔ اوے گارڈ، تمہاری ہمت کیسے ہو میرے اتنے قریب کھڑے ہونے کی؟ دور ہٹ کر کھڑے رہا کرو، مجھے غریبوں کے جسم سے آنے والی خوشبو سے الرجی ہے۔ فریشے نے اپنے چشمے کو پیچھے سے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، جی بی بی جی، معاف کیجیے گا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ شاہزر نے انتہائی نرمی سے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھیں پریشے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جہاں غرور دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بار جب پریشے اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاڑی سے اتری تو اس نے جان بوجھ کر اپنی چابیاں زمین پر پھینک دی۔ شاہزر، اٹھاؤ میری چابیاں اور میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور ہاں، اندر ہال میں مت آنا، باہر کتے کی طرح دروازے پر پہرا دینا۔ پریشے اونچی آواز میں ہنسی اور اس کی سہیلیاں بھی اس کا مذاق اڑانے لگی۔ شاہزر نے جھک کر چابیاں اٹھائی اور اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دانتوں کو سختی سے آپس میں پیستے ہوئے خود پر قابو پایا۔ اس نے دل میں کہا کہ پریشے فرزند، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، ہنس لو۔ تمہارا یہ غرور، تمہاری یہ بدتمیزی پر انتقام کے ترازو میں ایک ایک کر کے تولے جا رہے ہیں۔ جس دن اس ترازو کا پلڑا جھکے گا نا، اس دن تمہاری یہ ہنسی ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ مہینوں تک شاہزر نے پریشے کے غصے، اس کے نخرے، اس کی گالیاں اور اس کی بدتمیزیاں سہیں، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہا۔ اس خاموشی کے پیچھے وہ اپنے شکار کے کمزور لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک پریشے خود کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کرے گی، وہ ملک فرزند کی جڑوں پر وار نہیں کر پائے گا۔ اور بالآخر آج کی وہ طوفانی رات آ ہی گئی تھی جب پریشے نشے میں چور حواس کھو کر خود اس کی جنگل میں آ بسی تھی اور اپنی عزت خود سپردگی کے عالم میں اس کے ہاتھ میں تھما رہی تھی۔ شاہزر کے چہرے پر چمکتی وہ تاریک مسکراہٹ گواہ تھی کہ اس کا سالوں کا انتظار اب ختم ہو چکا تھا۔ باہر طوفان اپنے جوبن پر تھا۔ فریشے جو اپنی سفید شرٹ اتار پھینکنے کے بعد اب تقریباً نیم برہنہ حالت میں شاہزر کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنی حواس بالکل بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نشے کی سرخ لہریں دوڑ رہی تھی اور وہ اپنی ہی قدموں پر جھول رہی تھی۔ شاہزر نے گہرا سانس لیا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس وقت کائنات کی سب سے بے بس اور لاچار مخلوق لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے، صرف ایک ننھے سے پل کے لیے شاہزر کے دل میں کسی کونے میں رحم کے جذبے نے سر اٹھایا۔ اس سے سوچا کہ اسے چادر میں لپیٹ کر اس کے کمرے میں چھوڑا، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن کے پردے پر اسپتال کے اس درد کمرے کا منظر لہرا گیا جہاں زرینہ پھپھو نے تڑپ تڑپ کر اپنی آخری سانس لی تھی۔ ان کی پیلی رنگت اور بہتے ہوئے آنسو شاہزر کی آنکھوں کے سامنے منجمد ہو گئے۔ نہیں، رحم کیسا؟ کیا ملک فرزند نے میری معصوم پھپھو پر رحم کیا تھا؟ کیا اس نے اس حویلی کی عزت کا خیال رکھا تھا؟ آج اس کی بیٹی میرے سامنے اپنی عزت نیلام کرنے کھڑی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شاہزر کے چہرے پر چھائی نرمی اکثر غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک خوفناک زرد مہر مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے انتہائی خاموشی اور چالاکی سے اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکال لیا۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ شاہزر، تم اتنے دور کیوں کھڑے ہو؟ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ پریشے نے لرزتی آواز میں کہا اور اپنے ننگے شانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں یہی ہوں، آپ کے بالکل قریب۔ شاہزر نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا نرم اور ہمدردانہ بنایا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور پریشے کے گرنے سے بچانے کے بہانے اپنی چوڑی سینے کے قریب کر دیا۔ تم بہت اچھے ہو شاہزر۔ پریشے نے لڑکھڑاتے اپنا سر شاہزر کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی بکھری ہوئی زلفیں شاہزر کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ کوئی بھی میرے پاس نہیں رہتا، پاپا ہمیشہ میٹنگز میں ہوتے ہیں، ممی کہتی ہیں کہ میں ان کے ماتھے کا کلنک ہوں، لیکن تم تو میرے پاس ہو نا؟ جی جی، میں ہوں آپ کے پاس۔ شاہزر نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تاکہ وہ گرنے نہ پائے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا فون انتہائی مہارت سے اوپر اٹھا لیا۔ کیمرے کا رخ بالکل پریشے کے چہرے اور اس کے کھلے ہوئے شانوں پر تھا جہاں سے اس کی حالت زار واضح نظر آ رہی تھی۔ شاہزر، دیکھو باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، مجھے بارش میں بھیگنا ہے۔ پریشے نے نشیلی آنکھوں سے کیمرے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا شاید شاہزر اس کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ وہ معصومیت سے مسکرائی۔ میری تصویر بنا رہے ہو؟ اچھی بنانا، مجھے بہت خوبصورت ہونا ہے۔ بہت خوبصورت ہیں آپ بی بی جی، اتنی خوبصورت ہے کہ کل صبح جب دنیا آپ کا یہ روپ دیکھے گی تو دنگ رہ جائے گی۔ شاہزر کے لہجے میں چھپا طنز اور زہر
परीक्षा का धुंधला दिमाग समझने से कासिर था। हाँ, सबको दिखाना, पापा को भी दिखाना, उन्हें पता चले कि उनकी बेटी कितनी खुश है। परीक्षा ने रूहानी आवाज में कहा और शाहजर के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसकी शर्ट ने ना होने की वजह से उसका पूरा वजूद शाहजर की गिरफ्त में वाजिया था। शाहजर ने बड़ी बेरहमी से मोबाइल का जाविया बदला। उसने परीक्षा को खुद से थोड़ा दूर किया, इस तरह कि उसका बेलिबास हालत उसके चेहरे की मदहोशी और उसकी लड़खड़ाहट कैमरे की जिद में बिल्कुल साफ आए। शाहजर, मुझे छोड़ो मत, मुझे चक्कर आ रहे हैं, दुनिया घूम रही है। परीक्षा ने पुकारा और दोबारा उसके सीने से जा लगी। मैं कहीं नहीं जा रहा परीक्षा बीबी, मैं तो आपकी इस यादगार लम्हे को हमेशा के लिए महफूज कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा इस तरफ मुंह कीजिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। शाहजर इंतहाई पेशेवराना अंदाज में बगैर किसी जज्बात के उसकी वीडियो बनाता रहा। वक्त गुजरता गया लेकिन शाहजर के हाथ में पकड़ा फोन बंद नहीं हुआ। पूरी रात हवेली के इस हॉल में परीक्षा के गिर्द घूमता रहा। जब परीक्षा सोफे पर नेम दराज होती और अव्वल फुल बकने लगती तो शाहजर उसके चेहरे के क्लोज एप्स लेता। जब वो नींद और नशे के गलबे में सोफे से नीचे गिरने लगती तो उसने उसकी बेबसी को रिकॉर्ड किया। उसे परीक्षा की हालत के मुख्तलिफ जावियों से ऐसे शॉट्स ले जो किसी भी शरीफ घराने की लड़की को सड़क पर लाने के लिए काफी थे। परीक्षा नशे के जरिए से अपने घर के गार्ड से मुखातिब थी। कभी उसे अपना दोस्त कहती, कभी उसके गले लगती और कभी रोते हुए पापा से अपनी नफरत का इजहार करती। हर एक सेकंड की रिकॉर्डिंग मलिक फरजंद के तबूत में आखिरी कील साबित होने वाली थी। जब रात का आखिरी पहर शुरू हुआ तो परीक्षा मुकम्मल तौर पर बेहोश होकर सोफे पर गिर चुकी थी। उसकी बिखरी हालत और मासूम चेहरा देखकर कोई भी संग दिल तड़प उठता, लेकिन शाहजर का दिल इस वक्त पत्थर का हो चुका था। उसने आखिरी बार वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की और फोन अपनी जेब में रख लिया। उसने सोफे पर पड़ी चादर उठाई और बेरुखी से परीक्षा के जिस्म पर डाल दी। खेल अब शुरू हुआ है परीक्षा मलिक, अब इस तमाशे को देखने के लिए तैयार हो जाओ। शाहजर ने सोफे के पास खड़े होकर सर्द लहजे में कहा। सुबह के 5 बज रहे थे। बारिश बाहर थम चुकी थी। सुबह हो चुकी थी जब शाहजर हवेली के बैरूनी गेट के पास बने अपने छोटे से केबिन में बैठा था। उसके सामने उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन खुला था। ये उंगलियों की पूरी तेजी से उसके कीबोर्ड पर चल रही थी। उसने एक VNPN ऑन किया था और सोशल मीडिया पर बिल्कुल नई फेक आईडी बनाई। उसे रात भर रिकॉर्ड की गई वीडियो में ये सबसे ज्यादा काबिल एतराज और सनसनीखेज क्लिप्स को यकजा किया और एक मुख्तसर मगर तबाहकुन वीडियो फाइल तैयार की। वीडियो को टाइटल उससे इंतहाई जहरीला रखा, मलिक फरजंद की लाडली बेटी परीक्षा की अपने गार्ड के साथ रंग रलियां। हवेली के अंदर के मनासर। शाहजर ने गहरा सांस लिया। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में फतह का जुनून था। जरीना हो, आज आपकी रूह को सुकून मिलेगा। आज मलिक फरजंद का गुरूर इस शहर की गंदी नालियों में बहेगा। उसने एक जोरदार क्लिक की साथ वीडियो इंटरनेट की दुनिया में भेज दी। अब सुबह के 6 बज रहे थे और वीडियो वायरल होना शुरू कर दिया था। शाहजर ने मुख्तलिफ गुमनाम ग्रुप्स और फॉर्मल्स में उस वीडियोस को लिंक्स को शेयर किया। चूंकि मलिक फरजंद शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था और परीक्षा सोशल मीडिया पर अपनी मॉडर्न तस्वीर की वजह से पहले ही मशहूर थी, इसलिए ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। शाहजर अपनी केबिन की खिड़की पर हवेली के मरकजी गेट को देख रहा था। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट अब मजीद गहरी और तारीक हो चुकी थी। फरजंद, खुदा के लिए ये फोन सुने, सुबह से पूरे शहर में हमारा तमाशा बन रहा है। मेरे भाई का फोन था, वो पूछ रहा था कि सब क्या बकवास है। हवेली के लाउंज में शर्मिला की चीखती हुई आवाज गूंजी। उसका चेहरा आंसू और खौफ से जर्द था और उसके हाथ में पकड़ा फोन मुसलसल बज रहा था। शर्मिला, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मेरे बिजनेस पार्टनर कामरान ने अभी फोन करके हमारे नए प्रोजेक्ट की डील कैंसिल कर दी है। वो कह रहा है कि जिस शख्स की बेटी की ऐसी घटिया वीडियोस इंटरनेट पर गर्दिश कर रही हूँ उसके साथ कारोबार नहीं कर सकता। मलिक फरजंद ने गुस्से और सदमे से पागल होकर हाथ में पकड़ी फाइलें फर्श पर दे मारी। उसकी सालों की बनाई हुई साख, उसका गुरूर, उसका दबदबा सब एक रात में खाक में मिल चुका था। लेकिन फरजंद, ये वीडियो सच्ची कैसे हो सकती है? हमारी पीछे माने के जदीद ख्यालात की है, पार्टीज करती है, लेकिन अपने घर के मामूल आर्ट के साथ नहीं। ये कोई साजिश है। शर्मिला सोफे पर गिरकर सर पकड़कर रोने लगी। साजिश नहीं है, ये वीडियो में सिर्फ नजर आ रहा है कि वो किस तरह उस कुत्ते के गले में बाहें डालकर खड़ी है। वो गार्ड शाहजर, उसकी ये जुर्रत, मैं उसका खून पी जाऊंगा। मलिक फरजंद गुस्से से चिल्लाया और सीढ़ियों की तरफ भागा।
उसके पीछे शर्मिला भी रोती हुई दौड़ी। वो सीधा परीशे के कमरे में दाखिल हुआ। परीशा जो भी कुछ देर पहले बेदार हुई थी और सर दर्द की वजह से नढाल थी, अपने बेड पर बैठी बदहवास नजरों से अपने बाबा को देख रही थी। उसका नशा मुकम्मल तौर पर हुड़न हो चुका था और उसके सामने उसका मोबाइल फोन था जिस पर सैकड़ों नज़ेबा पैगामात और उसकी अपनी ही वायरल वीडियो चल रही थी। पापा, पापा मेरी बात सुनिए, मैंने ही, मेरा मतलब है मुझे कुछ याद नहीं रहा क्या हुआ था। परीशा ने रोते अपने पापा के हाथ पकड़ने की कोशिश की। खामोश हो, बिल्कुल खामोश। मलिक फरजंद ने बगैर कुछ सोचे समझे परीशा के बालों से उसे पकड़ा। पापा मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज छोड़ दे। परीशा दर्द से बिलबिला उठी। तुम्हें दर्द का पता है? मेरी इज्जत को पूरे शहर के चौक में नीलाम करके अब तुम्हें दर्द हो रहा है? चलो नीचे मेरे साथ। मलिक फरजंद ने इंतहाई बेरहमी से परीशा को बालों से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे घसीटना शुरू कर दिया। परीशा रोती चिल्लाती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन फरजंद के अंदर का बाप मर चुका था। अब वहां सिर्फ एक जख्मी उन्हा का मालिक जमींदार जिंदा था। जब वो नीचे हॉल में पहुंचे तो वहां मलिक शाह सर पहले से खड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ का कोई तासुर नहीं था, बल्कि एक सुकून छाया हुआ था। मलिक फरजंद ने परीशा को फर्श पर फेंक दिया, जहां वो सिसकियां लेती हुई गिर गई। फरजंद ने आगे बढ़कर शाहसर का गिरबान पकड़ा, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। हरामखोर, नमक हराम, मेरी ही हवेली का नमक खाकर, मेरे ही टुकड़ों पर पलकर तुमने मेरी ही बेटी पर हाथ डाला। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? बोलो। शाहजर ने अपने गाल पर हाथ रखा। उसे उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खून उतरा, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए सर झुका लिया। साहिब जी, मैंने कुछ नहीं किया। रात बीबी जी खुद नशे में थी, इन्होंने मुझे हुक्म दिया। बंद करो अपनी जुबान। फैजल ने जेब से अपनी पिस्टल निकाली और शाहजर की पेशानी पर तान दी। मैं तुम्हें इसी वक्त गोली मार दूंगा। फरजंद ने, खुदा के लिए रुक जाए। अगर आपने इसे मार दिया तो पुलिस केस बन जाएगा और हमारी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। शर्मिला ने भागकर फरजंद का हाथ पकड़ा। लो, फिर मैं क्या करूं शर्मिला? लोग मेरी शक्ल पर थूक रहे हैं, मीडिया वाले हवेली के बाहर जमा हो रहे हैं। फरजंद की आंखों से गुस्से के आंसू बहने लगे। फिर अचानक फरजंद के चेहरे पर एक भयानक फैसला उभरा। उसने पिस्टल नीचे की और अपनी जाती मुलाजिम को आवाज दी, रहमत अली, जाओ इसी वक्त मस्जिद से मौलवी साहब को लेकर आओ, जल्दी करो। फरजंद, मौलवी साहब को क्यों बुला रहे हैं? शर्मिला ने हिचकिचाते हुए पूछा। निकाह के लिए। इस रुसवाई का एक ही इलाज है, इस लड़की को इसी वक्त इस गार्ड के नाम कर दिया जाए, ताकि दुनिया को हम ये कह सकें कि इसका अफेयर था और हमने इसकी शादी कर दी। फरजंद ने नफरत से परीशा की तरफ देखा, जो कि फर्श पर पड़ी कांप रही थी। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत करे, मैं इस मामूली गार्ड से शादी नहीं करूंगी पापा, मैं आपकी बेटी, प्लीज मुझ पर रहम करें। परीशा ने रोते हुए फरजंद के पैर पकड़ लिए। मेरी बेटी उस वक्त मर गई थी जब तुमने इस कुत्ते के गले में हाथ डाला था। फरजंद ने उसे लात मारकर पीछे धकेल दिया। चंद ही मिनटों में रहमत अली मौलवी साहब को लेकर अंदर दाखिल हुआ। माहौल की संगीनियत देखकर मौलवी साहब भी कांप उठे। मौलवी साहब, आप अपना काम करें, इन दोनों का निकाह पढ़वाएं इसी वक्त, वरना आज यहाँ लाशें गिरेंगी। फरजंद ने बंदूक तान कर शाहजर के सर पर दोबारा तान ली। खौफ और खामोशी के साय में बंदूक की नोक पर मौलवी साहब ने निकाह के कलमात पढ़वाए। शाहजर ने इंतहाई पुरसुकून आवाज में कहा, कबूल है, जबकि परीशा ने रोते सिसकते हिचकियां लेते हुए बंदूक देखकर बादल नखास्ता कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही मलिक फरजंद ने पिस्टल वापस जेब में रखी। उसने नफरत से परीशा का हाथ पकड़ा और उसे झटके से शाहजर की तरफ धकेल दिया। आज से तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। शर्मिला, इस लड़की का जितना भी सामान है इसे बाहर फेंक दो। आज के बाद अगर इसने इस हवेली की तरफ कदम भी बढ़ाया ना, तो वैसे अपने हाथों से इसकी जान लूंगा। मलिक फरजंद ने गुस्से से चिल्लाते दोनों को धक्के देकर हवेली के मरकजी दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। परीशा हवेली के गेट के बाहर तपती सड़क पर गिरकर सारों की तार हो रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से अट चुके थे और उसके पांव नंगे थे। पापा, दरवाजा खोले, मम्मी मुझे माफ कर दे, मैं कहाँ जाऊंगी? वो बंद दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शाहजर सड़क की दूसरी तरफ खड़ा उसका ये तमाशा देख रहा था। अचानक फिजा में उसके हंसने की आवाज गूंजी। फरीशा ने हंसते हुए हैरत और सदमे से सर उठाकर उसे देखा। शाहजर उसकी हालत पर दिल खोल कर हंस रहा था। तुम तुम हंस रहे हो? शाहजर, ये सब क्या है? तुमने क्या किया मेरे साथ?
मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? परीक्षा ने लड़खड़ाते हुए खड़े होकर उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। शाहजहां ने उसका हाथ इंतहाई सख्ती से जकड़ लिया और उसके चेहरे के करीब झुक गया। उसकी आंखों में भी एक खानदानी जागीरदाना हिब्बत थी। हाँ परीक्षा, ये सब मैंने किया है। तुम्हारी वो वीडियो, उसका वायरल होना, तुम्हारे बाप का तुम्हारे बालों से पकड़ कर बाहर फेंकना, ये सब मेरी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था जो मैं पिछले 20 साल से लिख रहा था। क्या मतलब? तुम गार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? परीक्षा ने सदमे से पूछा। मैं कोई गार्ड नहीं हूँ परीक्षा। मेरा असल नाम मलिक शाहसर है। मैं मलिक तैमूर का बेटा हूँ और जरीना फूफो का सगा भतीजा। शाहजर की आवाज में सालों का जमाशुदा जहर उबल पड़ा। जरीना? कौन जरीना? मैं किसी जरीना को नहीं जानती। परीक्षा ने रोते हुए कहा। तुम कैसे जानोगी? तुम्हारे उस मगरूर बाप ने तो उसका नाम भी अपने दिल से मिटा दिया है। जरीना वो मासूम लड़की थी जिसका रिश्ता तुम्हारे बाप से तय हुआ था, लेकिन तुम्हारे बाप ने शहर की शर्मीला के लिए मेरी फूफो को जाहिल देहाती कहकर छोड़ दिया। मेरी फूफो 20 साल तक उस हवेली के कोने में घुट घुट कर रोती रही और एक दिन उसी सदमे में मर गई। शाहजहां ने उसका बाजू झटका। आज आज मैंने अपनी फूफो के बहते एक एक आंसू का हिसाब सूद समेत तुमसे और तुम्हारे बाप से चुकता कर लिया है। तुम्हारे बाप ने मेरी फूफो की इज्जत पमाल की थी। आज उसकी अपनी बेटी की इज्जत पूरे शहर की सड़कों पर रुल रही है। आज मेरा बदला पूरा हुआ। परीक्षा का दिल जैसे सीने में बंद हो गया। उस पर इंकशाफ हुआ कि जिस शख्स को अपना बॉडीगार्ड समझती थी, वो दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जल्लाद था। उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखों में शदीद नफरत उभरी। तुम तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने अपने खानदान की दुश्मनी का बदला मुझसे लिया। मैंने तो कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। आई हेट यू इडियट, आई हेट यू। परीक्षा ने चिल्लाते अपने दोनों हाथों से शाहजर के मजबूत सीने पर मुक्के मारना शुरू कर दिया। वो रो रही थी, चीख रही थी और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार कर रही थी। शाहजर ने गुस्से से उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे पीछे की तरफ झटक दिया। परीक्षा तपती हुई सड़क पर दोबारा गिर गई। मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ परीक्षा। मुझे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे इस खून से भी नफरत है। मेरा काम पूरा हो चुका है और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। शाहजहां ने तेज में आकर अपनी दाएं मुट्ठी हवा में लहराई। और अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती के रिश्ते से तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक। वो लफ्ज तलाक पूरा बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सड़क पर गिरी परीक्षा की बेबस आंखों पर पड़ी। परीक्षा के चेहरे पर उस वक्त हवाएं उड़ रही थी। वही टूट फूट थी उसकी आंखों में, वही आंसू बह रहे थे जैसे 20 साल पहले जरीना पप्पो की आंखों में बहे थे। शाजिर की जुबान तालू से चिपक गई। उसके जहन में बिजली की सी तेजी से ख्याल गूंजा। अगर आज मैंने इसे तलाक देकर इस तपती सड़क पर अकेला छोड़ दिया तो मुझ में और मलिक फरजंद में क्या ही फर्क रह जाएगा? मलिक फरजंद ने मेरी फुप्पो को रुस्वा करके छोड़ा था और आज भी मैं एक लड़की को सड़क पर जलील करके छोड़ रहा हूँ। क्या मैं वाकई अपनी फुप्पो का बदला ले रहा हूँ या खुद एक जालिम बन रहा हूँ? उसके गले में लफ्ज तलाक फंस कर रह गया। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो गया। शाजिर, बोलो, रुक क्यों गए? दो मुझे तलाक, खत्म करो ये तमाशा। परीक्षा ने सड़क पर चिल्लाते हुए कहा। शाजिर ने गुस्से और बेबसी से गहरी सांस ली। उसने अपना तपता हुआ हाथ उन्हीं बनी ईंटों की कच्ची दीवार पर पूरे जोर से मारा। उसके हाथ के जोड़ों में खून बह निकला, लेकिन उस दर्द ने उस हकीकत की दुनिया में उसे वापस ला खड़ा किया। वो बगैर कुछ बोले खून बहते हाथ के साथ वापस खामोश खड़ा हो गया और तपती सड़क पर रोती हुई परीशे को गहरी नजरों से देखने लगा। फिजा में अब सिर्फ परीशे की रोने की सिसकियां और दूर से आती ट्रैफिक का शोर बाकी रह गया था। शहर के एक पसमानदा और गुंजान आबाद इलाके के तंगली में वाक़या वो 2 कमरों का छोटा सा किराए का मकान हवेली के पुर आसाइश कमरों के मुकाबले में एक दोजक से कम नहीं था। दीवारों से उखड़ता पेट, छत पर चलता पुराना आवाज करता हुआ पंखा और किचन के नाम पर बिना एक छोटा सा कोना जहां मिट्टी का चूल्हा और चंद सिल्वर के बर्तन रखे हुए थे। ये परीक्षा की नई दुनिया थी जहां शाजिर उसे तलाक दिए बगैर अपने साथ ले आया था। शुरू के चंद दिन हशरे खैज थे। परीक्षा की चीखें और रोने की आवाजें उसे छोटे से घर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती। मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती शाजिर, मुझे वापस भेजो, मैं मर जाऊंगी इस घुटन में, इस गंदगी में। तुमने मेरा दम घोट दिया है। परीक्षा रोते हुए चिल्लाई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके नाजुक हाथ मिट्टी से अटे हुए थे। शाजिर जो फर्श पर बैठा एक पुराना पंखा ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं।
اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا سکوت تھا۔ پریشے بی بی، حویلی کے دروازے اب آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ آپ کا وہ باپ جس کے غرور پر آپ اچھلتی تھی، آپ کی سڑک پر چھوڑ کر اپنی عزت بچا چکا ہے۔ اب یہی آپ کا گھر ہے اور میں ہی آپ کا سب کچھ ہوں۔ تم میرے کچھ نہیں ہو، تم ایک دھوکے باز گارڈ ہو۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس نے ایک تکیہ اٹھا کر شاہزر کی طرف پھینکا۔ شاہزر نے تکیہ ایک طرف رکھا اور کھڑا ہوا۔ ہاں، میں نے تمہاری زندگی برباد کی، لیکن یاد رکھو یہ کھیل تمہارے باپ نے شروع کیا تھا، میں نے تو بس اس کا انجام لکھا ہے۔ اب رونا بند کرو، اس حقیقت کو تسلیم کرو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھوک اور ضرورت نے پریشے کے مزاج کی سرکشی کو توڑنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی اٹھ کر پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، اب اسے جھاڑو اٹھانا پڑتی۔ جب وہ فرش پر جھاڑو لگاتی تو اس کے نرم نازک ہاتھوں کی پوری سرخ ہو جاتی اور وہ بیٹھ کر رونے لگتی۔ شاہزر چوری چھپے اس کی حالت زار دیکھتا۔ اس کے دل کے اندر لگی انتقام کی آگ بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سا پچھتاوا جنم لے رہا تھا۔ ایک دوپہر جب باہر لو چل رہی تھی، پریشے کچن کے چھوٹے سے کونے میں کھڑی مٹی کے چولہے پر چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ماں سے چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بار بار نیلی تیلی سلگاتی اور ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی۔ آخرکار ایک تیلی سلگی، لیکن چولہے کی لکڑیوں نے اچانک تیز آگ پکڑ لی۔ پریشے خوف سے چلائی اور پیچھے ہٹتے اس کا دایاں ہاتھ ساس پین سے چھوٹ گیا۔ شاہزر بچاؤ مجھے! اس نے درد سے کراتے اپنا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہزر جو دوسرے کمرے میں تھا، اس کی چیخ سن کر وحشت کے عالم میں کچن کی طرف بھاگا۔ پریشے کو روتے دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے میں تڑپ اٹھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پریشے کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ پاگل ہو گیا! جب کام کرنا نہیں آتا تو کیوں ہاتھ لگاتی ہوئی ان چیزوں میں؟ شاہزر کی آواز میں غصہ تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے چھپی فکر اور تڑپ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ پریشے نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک لگی تھی۔ پاپا نے مجھے کبھی چولہے کے قریب بھی نہیں جانے دیا تھا، اور تم نے مجھے اس حال میں لا کھڑا کیا۔ شاہزر نے اس کے آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ اس کے گالوں پر چولہے کی کالی لک لگ چکی تھی اور اس کا ہاتھ بری طرح سے سرخ ہو چکا تھا۔ شاہزر کا دل پگھل کر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس معصوم کا کیا قصور؟ اس نے تو میری پھپھو کا نام تک نہیں سنا تھا۔ ملک فرزند کے گناہوں کی سزا میں اس معصوم لڑکی کو کیوں دے رہا ہوں؟ میں کتنا بڑا ظالم بن گیا ہوں۔ وہ ماں خاموشی سے اٹھا، فریج سے برف کا ٹکڑا لایا اور انتہائی نرمی سے پریشے کے جلے ہوئے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے لمس میں اب نرمی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ شاہزر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں پریشے کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ بہت۔ پریشے نے روتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان عقابی آنکھوں میں آج اسے کوئی نفرت نظر نہیں آئی، بلکہ وہاں تو پچھتاوے کے موتی چمک رہے تھے۔ شاہزر، تم تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا؟ تم نے تو مجھ سے بدلہ لینا تھا، پھر اب تمہاری آنکھوں میں یہ درد کیوں ہے؟ شاہزر نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں انسان ہوں پریشے، وہ پتھر نہیں ہوں۔ میرا بدلہ تمہارے باپ سے تھا، لیکن میں نے اس بدلے کی آڑ میں تو مجھے دکھ دیا، اس کا بوجھ میرے ضمیر پر اب تک میرا اٹھا نہیں پا رہا میرا ضمیر۔ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے شاہزر کے اندر چھپے ایک سچے غیرت مند اور درد مند انسان کا عکس دیکھا تھا۔ اس کے دل سے نفرت کا غبار چھٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں کے درمیان خاموش تبدیلی کا آغاز ہوا۔ شاہزر اب براہ راست اس کی مدد تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے وہ گھر کے باہری کام خود بھی کر دیتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر پانی کی بالٹیاں بھر کر رکھ دیتا، کچن کی لکڑیاں کاٹ کر رکھ دیتا اور بازار سے سبزی لا کر کچن کے کاؤنٹر پر سجا دیتا۔ پریشا نے بھی سے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس نے اپنی انا اور نخرے اس چھوٹے سے گھر کی چوکھٹ کے باہر ہی چھوڑ دیے تھے، اور وہ محلے کی ایک باجی سے کھانا پکانا سیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب چولہے کی آنچ سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ وہ بڑی مہارت سے روٹیاں بیلنے لگی تھی۔ ایک شام شاہزر دن بھر کی سخت مزدوری کے بعد گھر لوٹا۔ وہ تھکن سے چور تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، گھر کے اندر سے دال تڑکے کی اشتہار انگیز خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ صحن بالکل صاف تھا اور پریشا ایک سلیقہ مند گھریلو بیوی کی طرح دوپٹہ سر پر اوڑھے کچن میں برتن سیٹ کر رہی تھی۔ شاہزر کو دیکھتے اس کے چہرے پر ایک دھیمی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو کسی حویلی کی ملکہ کے چہرے پر بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اگر آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں، پریشا نے انتہائی نرمی سے کہا۔ شاہزر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پریشے،
تم نے یہ سب؟ ہاں, मैंने दाल चावल बनाए हैं. मुझे पता है आपको दाल चावल पसंद है. चक्कर बताइएगा कि कैसे बने हैं. परिचय ने एक कटोरी में सालन डालते हुए कहा. दोनों सहन में बिछी चटाई पर बैठ गए. शाहजर ने पहला नवाला मुंह में डाला तो उसकी आंखें नम हो गई. खाना वाकई बहुत लजीज था. बहुत अच्छा बना है परिचय, उसने मध्यम आवाज में कहा. शाहजर, परिचय ने उसका हाथ छुआ. मैंने आपको माफ कर दिया है. जो कुछ हुआ वो शायद हमारे नसीब में लिखा था, लेकिन इस छोटे से घर में मुझे जो सुकून मिला है वो मुझे उस हवेली में कभी नहीं मिला था. वहां दौलत तो थी पर कोई अपना नहीं था. यहाँ आप मेरे पास हैं. शाहजर ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसको चूम लिया. परिचय, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा. मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो. इस छोटी सी कुटिया में जब कभी नफरत की चिंगारियां उड़ती थी, अब मोहब्बत की धीमी आग सुलग चुकी थी. दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे और वो माजी के जख्मों को बुलाकर एक नए और खूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा चुके थे. मकाफाती अमल का पहिया जब घूमता है तो बड़े से बड़े फिरौन का गुरूर भी रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाता है. मलिक फरजंद जो कभी अपनी दौलत, शोहरत और खानदानी रोब के नशे में अंधा था, अब तन्हाई और बर्बादी के उस गहरे गड्ढे में गिर चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था. उसकी बर्बादी का आगाज तब हुआ जब उसकी सबसे करीबी बिजनेस पार्टनर कामरान ने मकरो फरेब का जाल बिछाकर उसके दस्तखत जाली किए और उसका पूरा बिजनेस, जायदाद और बैंक अकाउंट्स अपने नाम करवा लिए. मलिक फरजंद सड़क पर आ गया, लेकिन उससे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसकी मॉडर्न और जदीद बीवी शर्मिला, जिसके इश्क में उसने अपने खानदान को कुर्बान किया, उसे उसके जवाल के वक्त अकेला छोड़कर अपने रिश्तेदारों के बाद शहर से बाहर चली गई. उस आलीशान हवेली में जहां कभी नौकरों की फौज खड़ी रहती थी, अब सिर्फ वीरानी का राज था. रात की खामोशी में जब मलिक फरजंद अकेला बैठा, उसे दीवारों से जरीना की सिसकियां सुनाई देती. उसे अब समझ आ रहा था कि जरीना की बद्दुआ और उसकी पुप्पो जात बहन के बहते आंसू ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था. खुदा की लाठी बेआवाज थी और आज वो लाठी उस पर पूरे जोर से बरस चुकी थी. शाम के साए गहरे हो रहे थे और मिट्टी की सूंधी सूंधी सी खुशबू हवा में तैर रही थी. मलिक फरजंद, जिसका हुलिया मुकम्मल उजड़ चुका था, मैले कुचैले कपड़ों और बिखरे बालों के साथ लकड़ी के सहारे चलता, एक कच्ची कब्र के सामने आकर रुक गया. ये जरीना की कब्र थी जिस पर खुद झाड़ियां उगाई थी. वो अपने कांपते घुटनों के बल मिट्टी पर गिर गया. उसकी आंखों में पछतावे के गर्म आंसू बहकर जरीना की कब्र की मिट्टी पर गिरने लगे. उसने अपने कांपते हाथों से कब्र की मिट्टी को मुट्ठियों में भर लिया. जरीना, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ. मैंने तुम्हारी मासूमियत की कदर नहीं की, तुम्हारी मोहब्बत को मजाक उड़ाया और तुम्हें जाहिल कहकर छोड़ दिया. देखो जरीना, आज मैं खुद सड़कों पर रुल गया हूँ. मेरी दौलत, मेरा गुरूर, मेरी शर्मिला, सब मुझे छोड़ गए. काश मैंने तुम्हारी सादगी को अपना लिया होता. काश मैं तुम्हें ये दुख ना दिया होता. वो कब्र पर अपना सर रखकर बच्चों की तरह जारों की तरह रोने लगा. उसकी हिचकियां कब्रिस्तान के उस सुनाटे को चीर रही थी. मैं तुम्हारी कब्र पर मुआफी मांगने आया हूँ जरीना. अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो. घुटनों पर वो बैठकर उस कब्र पर लेटता रोता रहा, यहाँ तक कि उसका दिल पछतावे की आग में जलकर बिल्कुल साफ हो गया. उसने महसूस किया जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है, जैसे जरीना की रूह ने उसे माफ कर दिया हो. वो उठा और कब्र की मिट्टी को चूमा और अपने आखिरी फर्ज की अदायगी के लिए शहर की तरफ रवाना हो गया. शहर की उस तंग गली में शाहजर और परिशे के छोटे से घर के जहन में खामोशी थी. परिशे चूल्हे के पास बैठी रात के खाने की तैयारी कर रही थी, जबकि शाहजर सेन में बिछी चिटाई पर बैठा उसकी मदद कर रहा था. दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत और सुकून था. अचानक लकड़ी का खस्ता दरवाजा धीमे से दस्तक हुई. शाहजर, देखे बाहर कौन है? इस वक्त तो कोई नहीं आता, परिशे ने हैरत से अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा. शाहजर उठा, उसने दरवाजा खोला. सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए. दरवाजे पर एक इंतहाई बूढ़ा, कमजोर और झुका हुआ शख्स खड़ा था. उसके चेहरे पर झड़ियों का जाल था और आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी. ये मलिक फरजंद था. पापा? किचन के दरवाजे पर खड़ी परिशे के मुंह से एक बेसाख्ता चीख निकली. उसके हाथ से बर्तन जमीन पर गिर गया. भागती हुई दरवाजे की तरफ गई. अपने उस मगरूर बाप को देखा जो कभी उसके गुरूर से उसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था. आज इस हाल में देखकर परिशे के आंसू उसके निकल आए. पापा, आपकी हालत, आपको क्या हुआ?
परीशा ने रोते उसका हाथ थाम लिया। मलिक फरजंद ने कांपती नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा, जो एक सादा और सलीकामंद घरेलू लड़की बन चुकी थी। उसके चेहरे पर हवेली का वो तकब्बुर अब नहीं था, बल्कि एक तकद्दुस था। परीशे, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। फरजंद की आवाज गले में फंस गई। फिर फरजंद ने अपना चेहरा शाहजर की तरफ किया। उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और शाहजर के सामने झुकने लगा। शाहजर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारी फुप्पो जरीना की जिंदगी बर्बाद की और कुदरत ने मुझे उसकी सजा दे दी। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है शाहजर। मैं आज तुम्हारे सामने जोली फैलाकर जरीना के खून की, उसकी बर्बाद जवानी की और उसके आंसू की माफी मांगता। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे, अपने चचा, अपने सबसे बड़े दुश्मन को इस तरह अपने सामने झुकते और हाथ जोड़ते देख शाहजर के अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत सेकंडों में बिखर कर रह बह गई। उसे लगा पछतावे ने मलिक फरजंद को उसके गुनाहों की सजा दे दी है। अब उसे मजीद सजा देने की जरूरत नहीं थी। शाहजर ने फौरन आगे बढ़कर फरजंद के जोड़े हुए हाथ पकड़ लिए और उन्हें चटकने से रोका। चचा जान, बस कीजिए। खुदा के लिए अपना हाथ मत जोड़े। आप मेरे बाप की जगह है। शाहजर ने फौरन आगे बढ़कर फरजंद के जोड़े हुए हाथ पकड़ लिए और उन्हें झुकने से रोका। चचा जान, बस कीजिए। खुदा के लिए अपने हाथ मत जोड़े। आप मेरे बाप की जगह है। शाहजर की आवाज पर आई। उसने मलिक फरजंद को अपने मजबूत सीने से लगा लिया। मैंने आपको माफ किया चचा जान। माजी में जो कुछ हुआ उसे हमने उसी दिन दफन कर दिया था जब मैंने परीशे का हाथ थामा था। अब हमारे दिलों में कोई नफरत, कोई तलखी नहीं है। ये सुनकर मलिक फरजंद के चेहरे पर एक ऐसा सुकून उभरा जो इसने पिछले 20 सालों से कभी महसूस नहीं किया था। परीशे ने रोते अपने पापा के गले में बाहें डाल ली और उन्हें घर के अंदर ले आई। कमरे में चटाई पर बैठकर मलिक फरजंद ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से चंद कानूनी कागजात निकाले, उन्हें शाहजर के सामने रख दिया। शाहजर, ये मेरी आबाई जायदाद और शहर के इस बंगले के कागजात हैं, जो मैंने काबरान के कब्जे में अपनी कानूनी लड़ाई के बाद वापस बचा लिए थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय तुम दोनों के। मैं ये सब कुछ तुम दोनों के नाम करता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक दूसरे का मान बनकर जियो। पापा, हमें दौलत नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। परीशा ने उनका हाथ चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। मुझे पता है कि शाहजर तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। शाहजर, मेरी बेटी को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। फरजंद ने शाहजर के सर पर हाथ रखते हुए दुआ दी। अब फिक्र न करे चाचा जान। परीशा मेरी जिंदगी और मैं इसकी आंख में अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। शाहजर ने प्यार से परीशा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शर्मो हया की लाली दौड़ गई। मलिक फरजंद ने दोनों को गले से लगाया, उनके सरों पर शफकत का हाथ रखा और हमेशा के लिए अपने पछतावे के साए से आजाद हो गए। कुछ माह बाद हवेली के सहन में अब दोबारा से वही रौनक लौट आई थी, लेकिन वो रौनक किसी गरूर या दिखावे की नहीं थी, बल्कि मोहब्बत और सादगी थी। शाहजर और परीशा उस हवेली में वापस आ चुके थे जहां कभी नफरतों की दीवारें खड़ी थी। मलिक फरजंद अब अपने चंपे में पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे और अक्सर अपने भतीजे और बेटी के साथ वक्त गुजारते। शाम का वक्त था, आसमान पर हल्के गुलाबी बादल तैर रहे थे। परीशा हवेली की बालकनी में खड़ी चाय की प्यालियां लिए शाहजर का इंतजार कर रही थी। शाहजर सीढ़ियों से ऊपर आया और खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ परीशा की कमर के गिर्द फैला दिए और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। चाय ठंडी हो रही है शाहजर। परीशा ने मुस्कुराते हुए अपने सर को उसके सीने से टिका दिया। होने दो, मुझे तो बस इस लम्हे को जीना है। वो लम्हा जिसका सफर हमने नफरत की धुंध से शुरू किया था और आज मोहब्बत के इस खूबसूरत आसमान तक पहुंच गए हैं। शाहजर ने उसकी पेशानी पर मोहब्बत का लम्ह सख्त किया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ शाहजर। परीशा की आंखों में सच्ची मोहब्बत के सितारे चमक रहे थे। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरी जान। अब हमारे इस सफर में कोई पछतावा, कोई बदला, कोई साय नहीं है। अब सिर्फ हम हैं और हमारा ये प्यार। शाहजर ने परीशा का हाथ थाम लिया और दोनों बालकनी से दूर फैलते खूबसूरत अफक को देखने लगे, जहां नेक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी उनका इस्तकबाल कर रही थी। वो माजी के तमाम तूफानों से निकलकर और मोहब्बत के पुरअमन बंदरगाह पर पहुंच चुके थे, जहां अब कभी कोई तूफान उनके आशियाने को नहीं उजाड़ सकता था।